है दर्श न्यूज़ और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के कार्मल स्कूल में है और ऐसे में देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो कैमरे से दिखाएं। यहाँ पर तमाम कार्मल की जो लड़कियां हैं वो आपको नजर आएंगी और साथ ही यहाँ पर अलग अलग स्टॉल जो है वो लगाए गए। दरअसल यहाँ पर एक साइंस एग्जीबिशन यानी कि विज्ञान मेला लगा है और ऐसे में तमाम यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो लड़कियों की तरफ से खुद से बनाई जाती हैं। प्रोजेक्ट है ये और क्या कुछ खास है इस एग्जीबिशन में ये हम जानेंगे सीधे लड़कियों से और लड़कियों से ही इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मंतशा। आपका जो ये मॉड्यूल है इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? या So this is a coal thermal power plant where the chemical energy of the coal is converted into electrical energy. So the coal is stored here at the coal yard, which is then sent into the furnace building where ash is also produced, which is harmful for our environment, but it is handled by the ash handler, so the pollution minimizes. There is a boiler. So in the boiler, reaction occurs and the steam is produced, which is having kinetic energy. Over to you, Avni. That kinetic energy is then converted into mechanical energy by this turbine. It is then sent for general use through this transformer, and the remaining steam is then sent to the condenser where it is then converted into water and stored in this fixed water tank. And this cooling tower is used to specifically prevent pollution for the general public, hence it is placed at this height. We have a super Thermal power plant in Bihar, in Bad, which is organized by the NTPC Corporation. And as we know, in thermal power plant, which is particularly suited in India because it requires high temperature and it is like very cost effective because it is not very costly like the nuclear power plants. Instead of coal, to minimize the pollution, we can use natural gas because natural gas causes less pollution as compared to the coal. And further, many advantages of coal power plant is that it is prominently used in Bihar, in many Madhya Pradesh and Maharashtra because it gives a high amount of electricity to the heavy industries, and it is maintenance is also less in there. So coal power plant is very. What is the main agenda of making this whole project? Matlab, what's the SAR, the story, conclusion? We want to inspire the public that we should promote coal power plant because nuclear power plant are not very safe for us because of the radiations which cause cancer, and we have to inspire the people that instead of using koila we can use natural gas which is less pollution causing, so that less pollution is caused in our planet. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने विचारों को एक कह सकते हैं आप एक ढांचे में यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं और तमाम जो भी जानकारियाँ हैं वो दे रही हैं। और इधर की तरफ हम कहेंगे अपने सहयोगी को कि वो दिखाएं। यहाँ पर भी एक मॉड्यूल है जो हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को दर्शा रहा है, तो इसके भी बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं उनसे हम जानेंगे। आपका ये मॉड्यूल है तो इसके बारे में आप थोड़ा सा इसको एक्नॉलेज करें, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये एक मॉडल है हार्ट और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसमें से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्टरी में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ऊपर से जाके पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चला जाता है। लंग्स से वो ऑक्सीजन लेके नीचे आता है लेफ्ट आर्टरी में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू वो अरोटा के थ्रू नीचे आ जाता है वेन्स ऑफ कैपिलरीज में, और इसी तरह ये वर्क करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन जो पंप होता है हमारे बॉडी में फंक्शनल है, आप लोगों ने ये पूरा फंक्शनल उसको एक्सप्लेन किया है ना। तो जो अभी का जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं लगता काफ़ी पॉल्यूशन है? हाँ है ना। हाँ। तो इसको किस तरीके से आप एज अ स्टूडेंट आप क्या बोलना चाहेंगे कि इस तरीके से आप चीज़ों को बेहतर बनाएं? वो लोग आप लोगों ने भी सेम उसी मॉडल पे काम किया है, बताइए। टॉपिक हार्ट अटैक है क्योंकि हम लोग का एम जो था इस टॉपिक को बनाने का था कि इंडिया में हार्ट अटैक पे, क्योंकि बहुत लोगों को इंडिया में नहीं पता है कि हार्ट अटैक होता क्या है, और हमने एक उस पर बुक भी लिखी है जो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ऑन द स्पॉट अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो वो उसको बचा सकते हैं। लोगों को ये बात पता नहीं है कि हम हार्ट अटैक आने पे लोगों को बचा भी सकते हैं, तो हमने ये बुक लिखी है। ये खुद से लिखी है। कौन से क्लास में आप लोग? सेवेंथ में आप लोगों ने ये बुक खुद से लिखा है हार्ट अटैक से? पोएम भी लिखी है उस पर। आपने पोएम भी लिखा, सुनाइए आप प्लीज। A heart attack strikes with sudden might, causing pain and a terrible night. The chest tightens, the breath gets short, a medical emergency, a critical report. The ambulance comes, the doctors as well.
Treatment starts and the heart begins to swell. Medicine helps, the pain subsides, the heart rate lows and the person survives. तो आप देखिए यहाँ पर जो बच्चा, ये मैं रखूँगी अपने पास, तो यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं ये अपने माध्यम से दर्शकों को, लोगों को जागरूक कर रही हैं। और भी तमाम यहाँ पर आप स्टॉल्स देख सकते हैं, यहाँ पे कई आपको स्टॉल्स दिखेंगे। बता दें कि यहाँ पर साइंस में जो तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो तीनों विषयों को लेकर के यहाँ पर लड़कियों ने स्टॉल लगाया है। ये आप देख सकते हैं बायोलॉजी का ये स्टॉल है और इसमें तमाम बायोलॉजिकली जो भी चीज़ें हैं वो स्टूडेंट्स बता रहे हैं। हम आगे की तरफ भी चलेंगे और आगे की तरफ भी क्या कुछ है, देखिए ये यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में भी हम ज़रूर जानेंगे। ये मॉडल किस चीज़ पर बेसिस है, इसके बारे में थोड़ा एक्नॉलेज करिए। ये हम लोग का टॉपिक ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई एक्चुअली बहुत ही मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन होता है और बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन होता है क्योंकि उसी से हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब लाइट कॉर्निया पे फॉल होता है तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो आई को प्रोटेक्ट करता है और वो थोड़ा सा बाहर निकला रहता है। उसके बाद फिर वो आयरिस पे आती है लाइट। आयरिस एक्चुअली कलर्ड पार्ट रहता है जो और उसके पास एक सब्सटेंस रहता है जिसका नाम मेलेनिन होता है। उसकी वजह से उसका कलर रहता है। अगर किसी के बॉडी में मेलेनिन लेवल बहुत लो है तो उसका कलर ब्लू होता है, किसी में ज़्यादा रहता है तो ब्राउन और किसी में बहुत ज़्यादा रहता है तो ब्लैक रहता है। उसके बाद फिर आता है हम लोग का प्यूपिल। प्यूपिल एक विंडो की तरह होता है आई की, जिससे हम लोग की लाइट अंदर आती है और प्यूपिल का साइज़ आइरिस पे डिपेंड करता है। अगर अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है ताकि आई को डैमेज ना हो, और अगर लाइट कम है, डिम लाइट है, तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है ताकि हम लोग को अंधेरे में भी दिखाई दे। उसके बाद हम लोग के पास लेंस रहता है। लेंस प्यूपिल के जस्ट पीछे रहता है। लेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है हम लोग की आँख से तो लेंस पतला हो जाता है और उसको सेलरी मसल्स पकड़ी रहती है बहुत ज़ोर से, और जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास रहता है तो फिर ये लेंस बहुत मोटी हो जाती है। उसके बाद फिर आता है रेटिना। रेटिना पे एक्चुअली इमेज फॉर्म होती है। रेटिना के पास दो चीज़ होता है, एक रोड्स होती है और एक कोन्स। रॉड्स अमाउंट ऑफ लाइट पता करता है और कोन्स कलर करता है, लाइट का जो कलर होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। फिर यहाँ पे एक स्पॉट रहता है, ब्लाइंड स्पॉट उसे कहते हैं। उसे ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे रेटिना नहीं रहता है, वहाँ पे एक होल जैसे रहता है रेटिना के बीच में, उससे ऑप्टिक नर्व्स अंदर आते हैं और वहाँ पर कोई लाइट फॉल होती है ब्लाइंड स्पॉट पे तो फिर वहाँ पे हम लोग कुछ दिखाई नहीं देता है। ऑप्टिक नर्व्स अंदर आती है, उस इन्फॉर्मेशन को लेके ब्रेन के पास जाती है। ब्रेन में वो इमेज फॉर्म होती है, प्रोसेस होती है, क्योंकि जो एक्चुअली आई में जो इमेज फॉर्म होती है वो अपसाइड डाउन रहती है, वो फिर ब्रेन उसको सीधा करता है और फिर हम लोग को दिखाई देता है। इन एक्चुअल जो आई होता है वो हम लोग उससे दिखते नहीं, हम लोग को उससे दिखाई नहीं देता है, वो बस इन्फॉर्मेशन को लेके ब्रेन के पास जाता है। देखिए कितने अच्छे से इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। ये भी एक चीज़ है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे प्लीज़। ये है क्या? ये है मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ बटरफ्लाई और यहाँ हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं इसका कि ये किस तरह से फ्लाई करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बटरफ्लाई, फीमेल बटरफ्लाई अंडे देती है और उस अंडे में से एक भूखा कैटरपिलर बाहर निकलता है। वो कैटरपिलर अपनी स्किन को बार बार शेड करता है और खाता है, बहुत खाता है। उसके बाद फिर वो जब वो अपने फाइनल साइज़ पे पहुंच जाता है तब फिर वो स्टेम या फिर लीफ से अपने आप को अटैच कर कर क्राइसैलिस बनाता है। स्टार्टिंग के स्टेजेस में क्राइसैलिस कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद उसमें डेवलपिंग बटरफ्लाई फॉर्म होगी क्योंकि कैटरपिलर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, यहाँ बटरफ्लाई बनाता है। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद बटरफ्लाई होती है, वो बाहर आ जाती है, क्राइसैलिस को तोड़ देती है और फिर बाहर आके वो उड़ जाती है और फिर वापस वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वापस से वो फिर बटरफ्लाई एग्स देती है और वापस वही सेम प्रोसेस चलता रहता है। कंक्लूजन क्या आपका, ये मॉडल बनाने के पीछे कंक्लूजन आप क्या देना चाहोगे? कंक्लूजन ये देना चाहेंगे कि हमारी जो बटरफ्लाई है ये पूरा लाइफ साइकिल बहुत ब्यूटीफुल है और ये हम अपनी लाइफ में भी ला सकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल होती हैं और ये बटरफ्लाई उसी को डिनोट करती है। तो ये लाइफ साइकिल है। ये स्ट्रक्चर ऑफ अ बटरफ्लाई है जो होलोग्राम के थ्रू हम लोग दिखा रही हैं। सो यस मिस, 1 सेकेंड। ज़्यादा ही क्रिएटिव है, हमें भी हमारे स्कूल के दिनों की याद आ रही है। यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ अ बटरफ्लाई बता रहे हैं कि बटरफ्लाई किस तरीके से अपनी विंग्स खोलती है और फ्लाई करती है। और यहाँ एक मोनार्क पिंक बटरफ्लाई के बारे में बताया जा रहा है और ये एक 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर बनाया है हम लोगों ने। बनाने में आपको कितने दिन लगे? मिस, बड़ा सवाल है। मिस मुश्किल से 1 घंटा आधा घंटा में बन गया था। 1 से आधे घंटे में आपने बना के तैयार कर लिया? यस मिस, इसमें तो थोड़ा दिन लगा, 1-2 दिन लगा। तो आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हुए जो एग्जीबिशन लगता है इसको लेकर के बहुत बहुत या कौन सी क्लास में हो?
सेवेंथ में नाम क्या है आपका? मिस ई शेल राइस आयुषी। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने तरीके से काफ़ी कुछ क्रिएटिविटी जो है वो मॉड्यूल के माध्यम से, ढांचे के माध्यम से बता रही हैं, और हम अब उस तरफ चलेंगे और उस तरफ भी हम देखेंगे कि आखिर उस तरफ क्या कुछ क्रिएटिविटी जो है वो यहाँ के यहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर लाए हैं। ये केमिस्ट्री का सेक्शन है और ऐसे में सबसे पहले हम इसी सेक्शन पर चलेंगे। ये आपका मॉड्यूल क्या है, इसको एक्नॉलेज करिए, थोड़ा बताइए। सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट के फॉर्मेट पे बेस्ड हम लोग का स्ट्रीट लाइट बना है। नॉर्मली पैरेलल सर्किट पे बेस्ड होता है हम लोग का स्ट्रीट लाइट, पर हम लोग सीरीज सर्किट पे बनाया है। पैरेलल सर्किट में हम लोग को एक एडवांटेज तो मिलता है कि अगर एक भी लाइट ख़राब होता है तो तभी भी सब चलता है, पर सीरीज सर्किट में नहीं होता है। पर सीरीज सर्किट का काम बहुत ईजीली हो जाता है। ये आपको नहीं लगता ये चीज़ गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए? देखना चाहिए। ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है और लाइट्स ख़राब होते हैं, ब्लिंक करते रहते हैं हर वक्त, फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे होने लगते हैं कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। कंक्लूजन आप क्या देना चाहोगे? कि हम लोग को सारा सीरीज सीरीज सर्किट यूज़ नहीं बनाना चाहिए, पैरेलल सर्किट ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैरेलल सर्किट से अगर एक भी लाइट ख़राब होता है तो सब कम से कम रहेगा। पैरेलल सर्किट से ज़्यादा अच्छा स्ट्रीट लाइट्स बनेगा, पर हम लोग सीरीज सर्किट के ऊपर बेस्ड बनाया है। आप देख सकते हैं इधर भी हम आएंगे, इधर भी काफ़ी क्रिएटिविटी ये दिख रहा है। ये आखिर है क्या, इसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करो और इसको थोड़ा एक्नॉलेज करो। ये एक बरेलियम एटम का रिवॉल्विंग मॉडल है जो कि बोर्ड नाम के साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे। तो हम लोग वही अब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे वैलेंस शेल और उन लोग का इलेक्ट्रॉन का शेल सब रिवॉल्व करता है, और कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होता है, और फिर क्या बोलते हैं रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से कैसे ये रिवॉल्व करता है इन अ यूनिडायरेक्शनल। इसका कंक्लूजन आप बताओ, इस पूरे मॉडल का कंक्लूजन हम ज़रूर जानना चाहेंगे। कंक्लूजन यही है कि हम लोग का एम ये था कि हम लोग ये अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ कि कैसे मूवमेंट होता है एक एटम के अंदर। एटम तो सब देखा है, उसके अंदर सब जानता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होता है। तो हम लोग का यही एम था कि हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ, अच्छे से शो कर पाएँ कि कैसे होता है। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ये काफ़ी क्रिएटिविटी कर रहे हैं यहाँ पर, और ये भारत का झंडा, इसके बारे में एक्सप्लेन करिए आप। ये हमारे केमिकल्स से बना है। इट इज़ बेस्ड ऑन डेंसिटीज़। हमारा सबसे नीचा लेयर जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बिकॉज इट इज़ अ इनसॉल्युबल लिक्विड। ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी का होता है, इसलिए ये सबसे नीचे में है। इसमें हमने ऑयल पेंट का यूज़ किया बिकॉज इट इज़ सॉल्युबल इन दैट। हमारा जो बीच का लेयर है वो डिस्टिल्ड वाटर का है। इसमें हमने नॉर्मल पेंट यूज़ किया क्योंकि वाटर में हमारा ऑयल पेंट सॉल्युबल नहीं होता है। एंड टॉप मोस्ट लेयर जो है वो डाईइथाइल ईथर का है, जो भी ऑयल पेंट के ऑरेंज कलर का यूज़ कर बना है। एंड दिस इज हाउ द ट्राई कलर हैज। तो ये काफ़ी सोचने वाली चीज़ है। आप देख सकते हैं कि ये सारा मिक्स नहीं है ना, आपने डेंसिटी पे बेसिस है, आपने इसको डिवाइड नहीं किया है कहीं से भी बिल्कुल बीच में कोई प्लेस नहीं, आपको जितना भी हिलाना है हिलाइए, वो मिक्स नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं क्रिएटिविटी जो है वो ऑन टॉप ऑफ द लेवल है हेड के, और यहाँ पर और भी काफ़ी क्रिएटिविटी जो है वो स्टूडेंट्स ने बना कर रखी है, और जानेंगे हम एक एक करके, कोशिश करेंगे। कह रहे हैं यहाँ पर स्टॉल्स तो बहुत है, एक एक में काफ़ी समय लग जाएगा, तो जो भी हमें अट्रैक्टिव लगेगा हम उसके बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ये ओजोन लेयर डिप्लेशन है। दिस लेयर इज़ रिजिड नियर द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर, और इसका प्राइमरी फंक्शन है कि ये जो सन से जो हार्मफुल रेज आता है उसको अब्जॉर्ब करता है। तो आप देखिए क्रिएटिविटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, इसके बारे में भी जान ही लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा सा मॉड्यूल आप लोगों ने तैयार किया, कितना टाइम लगा इसको बनाने में? मोस्टली 1 मंथ लगा होगा हम लोग को। 1 मंथ लगा इसको एक्चुअली ऐसे ही प्रिपेयर हम लोग 1 मंथ से किया, बना हम लोग का 2-3 दिन में। तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमें। एक्चुअली ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, और इसको बनाने का मेन मोटो ये है कि हम लोगों को अवेयर करना है कैसे जो डर्टी वाटर्स होते हैं लेक्स और रिवर्स या ओशंस के, तो वो कैसे हम लोग फ़िल्टर करें इसको, और मतलब फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये। जैसे कि जो भी लेक्स और रिवर्स के गंदे पानी होते हैं उनको हम लोग फ़िल्टर करके एक साफ़ पानी में कन्वर्ट करते हैं, और वही क्लीन वाटर्स जो है वो सप्लाई करते हैं हम लोग होम्स में, हाउसेस में, जो कि हम लोग पी सकें। मेनली इस प्रोजेक्ट को बनाने का यही मोटो था कि हम लोग लोगों को बताएं कि कैसे ये जो भी गंदे वाटर्स हैं इनसे क्या कितने हार्मफुल बैक्टीरियाज या फिर जो भी है वो सब फैलते हैं। तो प्रैक्टिकल करके दिखाओ। ये यहाँ पर डेमो करके दिखाएंगी, और हम भी कहेंगे अपने सहयोगी को इसे अच्छे से कैप्चर ज़रूर करें। ओके, अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जो यहाँ पर प्यूरिफाई हो रहा है वाटर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे गंदगी है इस पानी में,
और ये जो इन्होंने यहाँ पे प्लेट रखा है, इस पर ये प्योरीफाई करके देखिए कैसे क्लीन वाटर जो है यहाँ से निकल रहा है। वो कलर भी काफ़ी अलग था और यहाँ से ये देखिए पूरा प्रोसेस है जो इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से बताया है। काफ़ी सही तरीके से इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है और काफ़ी काबिल तारीफ़ है। यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, ये कहना गलत नहीं होगा। हमें भी हमारे स्कूल के दिनों की याद आ गई है यहाँ पर आए हैं तो। और भी यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे काउंटर्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर इन लोगों ने बना रखी हैं जो काफ़ी नॉलेज वाली भी हैं और काफ़ी अच्छी हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो लास्ट सेक्शन की तरफ चले और वहाँ पर भी जो चीज़ें हैं उसको भी एक बार काउंटर देख लेते हैं, उसको भी जान लेते हैं। ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। कौन से क्लास में आप पहले ये बताओ? 8th में। आप एक्सप्लेन करें। ये एक एटम बॉम्ब है जिसका नाम लिटिल बॉय है। इसे हिरोशिमा जापान में गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, जो 8:15 AM में। And so we are showing that how the atom bomb named Little Boy works. So as you can see here, the power charge hits the chemical explosive uranium-235 and it strikes the subcritical mass, which is rod-shaped uranium charge. And when it hits the rod shape, the explosion happens and it forms a firewall. And this is how it looked like. तो इन्होंने एटम बॉम्ब किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से गिराया जाता है उसको एक्सप्लेन किया है और इसको भी जान ही लेते हैं। ये पहले तो आप ये मॉडल देख लीजिए, ये सेम मॉडल आपने तैयार किया है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। This is the DNA structure. First of all, I would like you to tell about the history of the DNA structure. There were two scientists named James Watson and Francis Crick. They discovered the 3D model of DNA in 1953. They discovered the 3D model because there was a reason, because the two strands were twisted together. That was this was called 3D. The most common found DNA in the world is bDNA and it has 10.5 strands together. And this is the double helix model of a DNA, and here we have extracted the DNA of a banana. And it has 4 bases, A, T, C and G. And she will tell you what are the uses of DNA. It is used in agriculture to determine the fruit type, and it is used to solve some criminal cases too, to find the criminal. तो देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हर एक चीज़ को और इसे भी कवर कर ही लेते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स हैं, आप मम्मी हैं इनकी, तो मम्मी का मांग है तो हम पूरा ज़रूर करेंगे। बताइए इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो पानी का तेज़ धार को यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। ये लेस्टर डी पेल्टन ने 1952 में पहली बार बनाया था। ये रिन्यूएबल है, रिलायबल है और कॉस्ट एफिशिएंट है और इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। ये प्रदूषण नहीं होता है। ये हाइड्रो पावर जो 2 वर्ड से बना है, हाइड्रो और पावर। हाइड्रो को ग्रीक वर्ड में वाटर बोलते हैं। जो पहली बार वहाँ पे उसका यूज़ किया गया था, पर तब इसका पानी के लिए नहीं, तब इसको चक्की पीसने के लिए यूज़ किया गया था। तो उससे इन्होंने ये हाइड्रो पावर बना दिया था। हाँ, ये एक्चुअली ये एक बहुत इको फ्रेंडली सब्सटेंस है, इसलिए इसे बहुत जगह यूज़ किया जा रहा है, इंडिया के अक्रॉस भी और वर्ल्ड में भी कई जगह ये यूज़ किया जा रहा है। यहाँ इंडिया में पहली बार ये दार्जिलिंग यानी बंगाल में ये पहली बार यूज़ किया गया था। आपको बिहार में ये चाहिए? हाँ, गवर्नमेंट से ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए। हाँ, तरीके की चीज़ें बिहार में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट से मांग भी है और काफ़ी यहाँ पर क्रिएटिविटी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ को तैयार किया है, बनाया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि काफ़ी मेहनत लगा होगा इन लोगों को यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को बनाने में, मॉडल को तैयार करने में। देखिए सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स की भी काफ़ी मेहनत लगती है। और पेरेंट्स भी, जब हम भी स्कूल में थे तो हमें याद है पेरेंट्स भी हमारे साथ जागा करते थे, हमारे प्रोजेक्ट्स में हेल्प किया करते थे। ये एक लास्ट सेक्शन है, इसको हम ज़रूर कवर करना चाहेंगे। इसके बारे में आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन करिए अच्छे से। हमने एक सिटी प्लान की है जिसका नाम बायो कैंप सिटी है। गुड मॉर्निंग मैम। हमने एक सिटी प्लान की है जिसका नाम बायो कैंप सिटी है। जैसा कि नाम बता रहा है, हम लोगों ने इसे बायो वेस्ट से बनाया है, केमिस्ट्री के थ्रू इसे प्रोसेस करके एक पूरी सिटी प्लान की है। इसमें हम लोगों ने ये दिखाया है वेस्ट ऑयल से डीजल कैसे बनाया जाता है और वेस्ट मिल्क से हम लोग बायो प्लास्टिक कैसे बनाएं।
पर कैसे? हम लोगों ने वेस्ट मिल्क लिया जो हमारे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या हमारे घर में 3 से 4 बार यूज़ करने के बाद बच जाते हैं, उसे हम लोगों ने फ़िल्टर किया है। फ़िल्टर करने के बाद उसे हम लोगों ने ट्रांसटेरिफिकेशन किया है। इसमें 2 लेयर बनता है, नीचे वाला लेयर एरोजेल का और ऊपर वाला लेयर हमारा डीजल का। बट वो जो डीजल होते हैं वो क्रिस्टल होते हैं जो कि प्योर नहीं होते, तो हम लोगों ने उसे डिस्टिल वाटर से वॉश कराया है। वॉश कराने पे हमें प्योर बायोडीजल मिले और जिस वाटर से हम लोगों ने वॉश कराया है उसे हम लोगों ने आरओ प्लांट किया। आरओ प्लांट करने के बाद हम लोगों ने उसे वो वेस्ट वाटर ना जाए उसे हम लोगों ने प्लांट में यूज़ किया है। और जो हम लोगों ने प्योर बायोडीजल बनाया उसे हम लोग अपने व्हीकल्स में, हमारे कार में या हमारे रेलवेज़ में यूज कर सकते हैं। थैंक यू। काफ़ी क्रिएटिविटी इसके बारे में। हाँ, यहाँ हम लोगों ने रॉ मिल्क लिया है। जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया में 3 to 4% मिल्क ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या फिर हमारे घर में भी, तो उसे यूज़ करने के लिए हम घर में लेमन डालते हैं, विनेगर डालते हैं, तो हम लोग एसिड भी डाल सकते हैं। उसको थोड़ी देर रख देंगे तो वो प्लास्टिक के फॉर्म में बन जाएगा जो कि बायो प्लास्टिक हो जाएगा। उससे हम टॉयज़ बना सकते हैं। अगर उसे अल्कोहल से वॉश करेंगे तो उससे एरोजेल बन सकता है, क्ले ब्लेंडर बन सकता है, कैशे कलेक्टर बन सकता है। उसका फर्दर यूजेज और फ्लो चार्ट हमारे बोर्ड्स पे हैं। और ऐसे में हम अभी मेन स्टेज पर हैं और यहाँ पर भी एक मॉड्यूल है और इसके बारे में हम जानेंगे क्या कुछ है। ये देख सकते हैं आप, इसरो को लेकर के आपने ये मॉडल तैयार किया है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। ये पूरा मॉडल बेसिकली इसरो पर ही कंट्रीब्यूटेड है। मतलब ये पूरा आपको बताता है इसरो का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द साइकिल टू स्पेस स्टेशन। साइकिल कैसे, मेयरली साइकिल पे पार्ट बाय पार्ट जोड़कर APJ अब्दुल कलाम ने, विक्रम साराभाई ने रॉकेट को उड़ाया था बैक इन 1963 टू आज, जब यहाँ पे इतने सारे मिशन हमारे देश से जा चुके हैं और वो भी सक्सेसफुल। जिधर गए हमने उधर मार्क भी किया है। इंडिया से जिस प्लैनेट पे एक्सप्लोर हो चुका है हमने उधर मार्किंग भी की है, और जिधर नहीं किया गया है उधर हमने सून का टैग लगाया है, बिकॉज वी इंडियंस बिलीव कि कल को जाके हम वहाँ भी जाएंगे। इंडिया विल एक्सप्लोर ईच एंड एवरी प्लैनेट। तो ये हमारा प्रेजेंट है। और फ्यूचर के बारे में बताएं तो आजकल लोग सब कहते हैं कि हम मार्स पे रहेंगे, मार्स पे रहेंगे। मेरा ये कहना है कि वीनस पे क्यों नहीं, वीनस भी तो एक फेवरेबल जगह है। अगर हम कल को जब साइंटिस्ट बनते हैं तो वीनस पे रिसर्च करते हो, वीनस पे क्यों नहीं घर बसा सकते हैं। ऐसा इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि वीनस पे जब स्टडीज़ बताती है कि 55 किलोमीटर तक तो वहाँ का कंडीशन बहुत सेवियर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट है। लेकिन 55 किलोमीटर के ऊपर एक ऐसा एरिया है जो कि एक्चुअली में हैबिटेबल है। वहाँ पे अगर आप जस्ट एज्यूम करिए, हम एक छोटा छोटा कैप्सूल टाइप का बना के, जैसा हम AI जनरेटेड पिक्चर में देख सकते हैं, वैसे कैप्सूल के फॉर्म में अगर हम वहाँ बनाते हैं और उसके अंदर अगर ह्यूमन लाइफ फ्लरिश करता है तो ये क्यों नहीं पॉसिबल है। जैसा कि यहाँ ऐसे ह्यूमन लाइफ क्यों नहीं फ्लरिश कर सकता एक छोटे से कैप्सूल में रहकर। तो उस कंडीशन पे एक्चुअली ये पॉसिबल है। अब यहाँ पे जब एक कैप्सूल बन जाए तो अंदर में हम साइनोबैक्टीरिया लाके हम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करवा सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें जो अनफेवरेबल है उस कंडीशन को यूज़ करके हम इसको हैबिटेबल बना सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल। कल को हम साइंटिस्ट बनेंगे और हम इसको पूरा बिल्कुल करेंगे कंप्लीट। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। कोई इंटरेस्ट ये प्लैनेट, सैटेलाइट? मेरा इंटरेस्ट बेसिकली मेडिकल फील्ड में है, लेकिन एनीथिंग इज़ पॉसिबल। मेडिकल के बाद इसको परस्यू करेंगे इन दिस पॉसिबल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो अपनी अपनी क्रिएटिविटी जो है वो स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बता रही है। इनको भी देख ही लेते हैं ये क्या है। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर सेंटर, यहाँ पर लड़कियाँ हैं काफ़ी। ये आप लोगों का ग्रुप प्रोजेक्ट है? सारा एक साथ आप लोगों ने बनाया। कौन से क्लास में हो आप लोग? 12th में हो आप लोग। तो बताना आप शुरू करिए अपने मॉडल के बारे में। हमारे मॉडल का नाम ज़ीरो टू इन्फिनिटी है। हमारे मॉडल में इसरो की डेवलपमेंट के 3 फेजेस दिखाए गए हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हमारे पास में आर्यभट्ट सैटेलाइट दिखाया गया है। ऑल्दो ये हम उस टाइम पे हमारे कंट्री के पास खुद का स्पेस स्टेशन नहीं था 1975 के टाइम, तो ये रशिया से लॉन्च किया गया था। ये कुछ सालों के बाद इसका सिग्नल छूट गया, बट स्टिल ये पहला हमारा एक माइलस्टोन था, एक बेंचमार्क था कि हमारे इंडिया का इसरो स्पेस में और आगे जा सकता है। प्रेजेंट में और एज यू नो चंद्रयान 3, 2 चंद्रयान के कंसेक्यूटिव फेलियर के बाद इसरो डिटरमाइंड था कि नहीं हम जाएंगे चांद पे, और आज चंद्रमा दूर के नहीं रहे। इसमें ये वर्किंग मॉडल है हमारा चंद्रयान और विक्रम लैंडर जो रोवर है उस पर है।
हमारे फ्यूचर में हमने देखा है, क्योंकि सिंस हम लोग 5 दिन से ज़्यादा चांद पे नहीं रह सकते, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट का इतना वेट रहता है कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन साथ में लेके नहीं जा सकता है। ये जो अपोलो 11 का जो लैंडिंग साइट था, वहाँ पर हम लोग का कुछ केव्स मिला है सी ट्रैंक्विल्स के ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर नीचे। उस केव्स को अगर हम लोग सही से इनहैबिटेशन के लिए यूज़ करेंगे तो कल को हर किसी का अपना घर होगा चांद के साथ। चांद पर तो देखिए चंदा मामा दूर के नहीं रहे, जैसा कि इन्होंने बताया। और यहाँ पर देखिए तमाम, आप उधर नज़र अगर डालिएगा तो यहाँ पर तमाम आपको स्टूडेंट्स नज़र आएंगी जो अलग अलग क्लासेस में हैं और अलग अलग सेक्शंस को, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं और इसके बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत जानकारी, इसके बारे में भी आप हमें दे दें। ये शॉक गार्ड है, ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है वुमेन के लिए। आजकल इतने क्राइम्स हो रहे हैं वुमेन के साथ कि इस टाइप का कोई डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जैसे ही कोई आपको टच करेगा, बस एक रिमोट का बटन आपको दबाना है और उस इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो बेसिकली आपको कोई टच नहीं कर पाएगा बिना आपके कंसेंट के। तो ये मतलब लड़कियों के नज़रिए से आपने इस चीज़ को बनाया। जिस तरीके से अभी क्राइम आप देख रहे हो, कोलकाता ले लो, कहीं भी ले लो, इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो आपने उसको रख करके इंस्पायर होकर उसको बनाया। तो ये वर्क कैसे करता है और बॉडी पे कैसे ये वर्क करेगा? एक तरह के कपड़े जैसे पहना जा सकता है इसको। ये हम लोग बस ऐसे ही मॉडल बनाए दिखाने के लिए कि ये वर्क कैसे कर रहा है। इसका स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो ये इसका मतलब ये वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है। तो अगर ये मटेरियल कपड़े के बाहर रहेगा, अगर कोई इसे टच करेगा तो फिर उसी आदमी को शॉक लगेगा, कोई कंसर्न के बिना टच। ये सेफ्टी पर्पस से लड़कियों को लेकर जिस तरीके से अभी चीज़ें बढ़ गई हैं, प्लस इट इज़ सेफ टू वेयर, क्योंकि ये मटेरियल जो कंडक्टिंग रहेगा वो बाहर रहेगा, अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल रहेगा जो बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। और इट इज़ नॉर्मल कपड़ों के उधर इस तरीके से केसेस आप बना खुद का कपड़ा बना के भी पहन सकते हैं, जैसे किसी भी तरह का गारमेंट, अंडरवियर, ऊपर का वेयर, कुछ भी। और ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है जो मैन्युफैक्चर, इस टाइप का प्रोडक्ट अभी मार्केट में कहीं नहीं है इंडिया में। तो हमने खुद से सोचा है। आपने काफ़ी क्रिएटिविटी लगाया इस चीज़ में। ये तो सोचना भी बहुत दूर की चीज़ है आप लोगों ने जिस तरीके से इसको बनाया। सेफ्टी को लेने के लिए हमें ऐसा आइडिया सोचना, पर आजकल जैसा केसेस हो रहा है तो उसे देख के हमें ऐसा मॉडल बनाया है कि जो लाइक काम में आए और इनोवेटिव रहे। तो आप कुछ और बताएं? हाँ, ये बैटरीज पे वर्क नहीं करेगा। एक्चुअल मॉडल जो बनाएंगे ये पीजो इलेक्ट्रिक पैचेस पे वर्क करेगा। इसका मतलब कि जैसे ही रिमोट ऑन होगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा इसका, और जैसे इस पे मोशन डिटेक्ट हुआ या प्रेशर इस पे पड़ा, कोई टच किया तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और आपको खुद में कोई इलेक्ट्रिसिटी फील नहीं होगा। यहाँ पे आप छू के भी देख सकती है, अंदर का साइड बहुत कंफर्टेबल है। हाँ, ये एक फैब्रिक है, नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल कॉटन है अंदर के साइड, तो वो बहुत कंफर्टेबल रहेगा। जी, तो क्रिएटिविटी आप देख ही सकते हो किस तरीके से लड़कियों की क्रिएटिविटी है। और यहाँ पर और भी जितनी भी लड़कियाँ हैं उनके पास भी हम चलेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने क्या कुछ सोच करके अपने मॉडल को तैयार किया है। बच्चियाँ हैं, इनसे भी हम ज़रूर जान लेंगे इसके बारे में। अपने मॉडल के बारे में थोड़ा हमें एक्सप्लेन करें। This is a wind turbine, a working model. Wind turbine is used to generate electricity and it works on a simple principle of pressure of air and wind. If the pressure of wind is high, it will produce high amount of electricity, and if the pressure of wind is low, it will produce low amount of electricity. It converts the kinetic energy into mechanical energy. That's what. तो इन्होंने बताया, आप हाँ बताओ। My नाम क्या, पहले नाम बताओ। Janvi. So it is a windmill, as you can see here. It is a tall structure and it is also known as green energy because it is placed over the mountains, hills and some planty areas. And the first use of windmill was in Denmark, like in 1980 something. तो आपने जो ये मॉडल तैयार किया है, इसका कंक्लूजन क्या है? आप इसे क्या एक वो जो नोट होता है वो देना चाहते हैं उसके बारे में? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है एंड ये हमें मतलब ये बहुत जगह रहता है ऐसा। तो देख सकते, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है, जिस तरीके से ये यहाँ पर चीज़ों को दर्शा रही हैं कैमरे के माध्यम से। काफ़ी चीज़ें और भी हैं यहाँ पर जो हम आगे आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, बने रहिए आप इस पूरे वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हर एक चीज़ को, और यहाँ पर बहुत क्यूरियोसिटी दिखा रही है ये लड़कियाँ, इनके पास भी हम ज़रूर आएंगे इसके बारे में। ये गुड मॉर्निंग, ये मेकअप को लेकर है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, बताइए। So as we know that the smoke that is produced from the factory are
very harmful for us. Here you can see the smoke is producing from the factories, and here the acid will be, 1 second. On kar de. So here the acid is falling, and in this we are showing that how cosmetics are harmful for our skin. We have pasted a chart here also, you can see. Yeah, actually like from primer causes dryness, crackiness and other forms. मेकअप तो ज़रूरी है, Why? अंदर कैसे लगेंगे? It's okay, but we should clean our makeup before sleeping, or we should double cleanse our face because it harms very much our skin. Yes. का मेन कंक्लूजन यही है कि जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी बुरे हैं, वॉश कर लीजिए जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए शिक्षा का मंदिर है और ऐसे में इस मंदिर से ही कई सेलिब्रिटीज़ निकलते हैं, कई मंत्री निकलते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट किस तरीके से बनते हैं ये यहाँ पर साफ तौर पर बच्चों ने जो है वो बता दिया है। और देखिए हम दर्श न्यूज़ के माध्यम से यहाँ आए थे और यहाँ पर आकर के हमने ये सारी चीज़ों को कवर किया है और अपने दर्शकों को बताया कि देखिए शिक्षा का मंदिर है। स्कूल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से बच्चे बाहर निकलते हैं, पढ़ते हैं और यहीं से कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो कोई साइंटिस्ट बनता है। तो स्कूल का वैल्यू क्या है, स्कूल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, स्कूल की पढ़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया। दर्श न्यूज़ पर फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं यति सिंह, दर्श न्यूज़ पटना।